आज हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे रोज़ की तरह। एक श्लोक से हम गाइडेंस लेंगे। सो लेट्स सी आज हमारे पास में भगवत गीता से क्या गाइडेंस आ रही है। चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 18 आया है। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवसा शरणाम सुहृत् प्रभावः प्रलया स्थानम निधानम बीजम अवययम। I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge, and the most dear friend. I am the creation and the annihilation and the basis of everything, the resting place and the eternal seat. तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में अपने बारे में जब बता रहे थे, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में वो अपने बारे में बता रहे थे इस वाले श्लोक में। तो उसके पहले वाले श्लोक में भी उन्होंने बताया है कि आई एम द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स, द मदर, द सपोर्ट, द ग्रैंड सायर, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, प्यूरिफायर, सिलेबल ओम, ऋग, सम एंड यजुर्वेदा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना वो सब कुछ में स्थित है, ठीक है, हर एक चीज़ में वो स्थित है। तो यहाँ पे वो अपने बारे में जब बता रहे थे तभी इन सब पॉइंट्स को उन्होंने अर्जुन को बताया। इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा। गति मीन्स द डेस्टिनेशन वेयर वी वांट टू गो। कौन से गति में जा रहे हैं, कहाँ से, गंतव्य स्थल कौन सा है, गोल कौन सा है, ठीक है। बट द अल्टीमेट गोल इज कृष्णा, ऑल्दो पीपल डू नॉट नो इट। वन हु डज नॉट नो कृष्णा इज मिसलेड, and so his progressive march is either partial or hallucinatory. There are many who make as their destination different demigods, and by rigid performance of strict respective methods they reach different planets known as Chandralok, Suryalok, Indralok, Maharloka, etc. But all such lokas or planets being creations of Krishna are simultaneously Krishna and not Krishna. मतलब वो सारे कृष्ण ने ही बनाए हैं, तो इनडायरेक्टली वो सारे कृष्ण ही हैं, बट वो एक्चुअल में पूरी की पूरी कृष्ण नहीं, कृष्ण का कोई एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। सच प्लैनेट्स बीइंग मैनिफेस्टेशन, मतलब आपकी इंटेंशन कृष्ण को रीच करना नहीं था, उनके उस पर्टिकुलर पार्ट को रीच करना था, तो वो थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट एनर्जी रह जाती है। But all such lokas or planets being creations of Krishna are simultaneously Krishna and not Krishna, but such planets being manifestations of Krishna's energy, क्योंकि वो कृष्ण के एनर्जी से ही बनी हुई है, are also Krishna, but actually they serve only as a step forward to realization of Krishna. To approach the different energies of Krishna, it is to approach Krishna indirectly. One should directly approach Krishna, for that will save time and energy. For example, if there is a possibility of going to the top of building by the help of an elevator, why should one go by the staircase step by step? Everything is resting on Krishna's energy. Therefore, without Krishna's shelter, nothing can exist. Krishna is the supreme ruler because everything belongs to him and everything rests on his energy. Krishna, being situated in everyone's heart, is the supreme witness. मतलब वो हर एक चीज़ को देख रहे हैं, हमारे हृदय में उनकी एनर्जी जो स्थित है उसके ज़रिए वो हम सबको स्कैन कर रहे हैं, हम सबके बारे में पता लगा रहे हैं, और उनको हर एक चीज़ को पता है। वो सुप्रीम रूलर है, हर एक चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, बट किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते। The residences, countries or planets on which we live are also Krishna. Krishna is the ultimate goal of shelter, and therefore one should take shelter of Krishna either for protection or for annihilation of his distress. मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना दुखों को एंड करने के लिए। And whenever we have to take protection, we should know that our protection must be a living force. Krishna is a supreme living entity, and since Krishna is a source of our generation or the supreme father, no one can be a shelter, no one can be a better friend than Krishna, nor can anyone become a better well-wisher. Krishna is the original source of creation and the ultimate rest after annihilation. कृष्ण इज देयरफॉर द इटर्नल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो कृष्ण हर एक कॉज जो भी हो रहा है दुनिया में, उसके पीछे वो सबसे बड़ा रीज़न वही है। वो हर एक चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, वो हर किसी के सबसे ज़्यादा अच्छा फ्रेंड है, सबसे बड़ा शेल्टर है और सबसे ज़्यादा वेलविशर है। वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं और हमारी समस्याओं को काट के फेंक देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कृष्णास एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम टुडे। वो चैप्टर 9 में आप अगर पढ़ना चाहते हो, आपको वहाँ से कृष्ण भगवान के बारे में पता लगेगा। थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।